Welcome friends. Today's topic is charging by contact. We have two identical metal sphere from which one is positively charged and another metal sphere is neutral, means no charge on the second sphere, or you can say A sphere and B sphere. A sphere is positively charged, B sphere having no charge, means neutral. Now we make some physical contact between these two spheres. So what happens? So when we contact these two spheres, the charge will equally distributed between two metal spheres. Means यहाँ पे जो इनिशियल A स्फीयर के ऊपर जो चार्ज था वो जब हम उसको B से कांटेक्ट करवाएंगे तो दोनों स्फीयर आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों के ऊपर चार्ज हाफ हाफ मींस इक्वली डिवाइड हो जाएगा. दिस इज नोन एज दी चार्जिंग बाय कांटेक्ट. यू कैन कांटेक्ट these two spheres by metal or conducting wire also. Suppose we have three spheres. Then what happened? Sphere A, B and C. We have charged sphere A and B and C both are neutral sphere. All these three spheres are identical. Identical मतलब each and every sphere having same material, same size, same dimension. By all the ways each sphere is same. So what happened when we contact these three spheres? A sphere, B sphere and C sphere. Then charge will equally distributed between these three metal sphere. Here I take 6 positive charges. So these 6 positive charges equally distributed between three identical sphere. So each sphere having 2 positive charge. Okay. So similarly we can say that if there are so many identical spheres, the total initial charge will equally distributed on the sphere. This is the method of charging by contact, either by connecting by the metal wire or directly physical contact. Now the second method is method without contact charging. ये जो है वो चार्जिंग बाय कांटेक्ट, मतलब आप चार्जिंग बाय कंडक्शन भी बोल सकते हो. उसमें फिजिकल कांटेक्ट मेटल वायर के थ्रू या तो डायरेक्टली था. बट यहाँ पे अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें क्या होगा? तो उसमें हम कांटेक्ट के बिना ही जो न्यूट्रल बॉडी है उसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर लेंगे. तो चार्जिंग by induction without contact. Okay. So what is the procedure? So take two identical spheres, sphere A and sphere B. Both are initially neutral, means there
is no charge on any of these two spheres. We want to charge it without contact it. So करना क्या है, तो दोनों जो स्फीयर है उसको एक दूसरे को कांटेक्ट कराओ, देन टेक दी पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड. सपोज ये ग्लास रॉड है, वो पॉजिटिवली चार्ज मैंने लिया है, बराबर. पुट दी पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड नियर दी surface of the A sphere. We knew that positive charge attracts the negative charge. So metal having the free electrons. So positive charge attracts the negative charge. So यहाँ पे मैं negative charge दिखा दूंगा. And positive repel each other. तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज बता दूंगा. पॉजिटिव ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव ग्लास रॉड रिपल द पॉजिटिव चार्ज. नाउ नेक्स्ट स्टेप, take some minimum separation distance. So A and B. Glass rod. यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव positive positive positive. Now take glass rod away from the sphere A. So यहाँ पे जो ग्लास रॉड था पॉजिटिवली चार्ज, वो मैं दूर ले जाता हूँ, तो इसकी वजह से जो ए और बी स्फीयर के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. तो इसकी वजह से नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. नाउ इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर. सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे जो हमको ए और बी स्फीयर मिलेंगे वो ऐसा कुछ मिलेगा. मींस जो चार्ज ए के ऊपर हमने दिखाया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सिमिलरली चार्ज ऑन बी ऑल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यहाँ पे मैंने ग्लास रॉड जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसका कोई फिजिकल कांटेक्ट ए या बी स्फीयर से नहीं करवाया है. विदाउट कांटेक्ट मैंने ए और बी जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थे उसको चार्ज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? तो सेम वे वी कैन ऑल्सो टेक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड. तो सब जगह यहाँ पे रिवर्स साइन आएगी. तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. सिमिलरली A will become positive and B will become negatively charged. So this is the method of charging by induction, मतलब without contact हम जो चार्जिंग करते हैं वो. ओके ओके. Second thing, if we have neutral metal sphere and we want to make it charge, either negative charge or positive charge without contact it.
यहाँ पे दो स्फीयर थे, यहाँ पे मैंने एक ही स्फीयर लिया है, बराबर। चलो, तो यहाँ पे न्यूट्रल स्फीयर कोई ए है और यहाँ पे मैं इसके नजदीक कोई ग्लास रॉड लाता हूँ। So what will happen? Positively charged glass rod attracts the negative charge. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ईच अदर। तो जो नियरर सरफेस ऑफ द ए स्फीयर फॉर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, वहां पे नेगेटिव चार्ज अरेंज होगा, एंड जो दूर की सरफेस है वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव दूर की सरफेस पे अरेंज होगा। चलो देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको? तो जो ए स्फीयर है, यहाँ पे ग्लास रॉड जो है उसको हमको वैसे का वैसा ही रखना है। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको मैं अर्थिंग करूंगा। अर्थिंग, और यू कैन से ग्राउंडिंग। सो अर्थिंग या ग्राउंडिंग की वजह से हमको पता है कि अर्थ इज ए सोर्स ऑफ इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स एंड ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव। सो होगा क्या, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को ये दो पॉजिटिव चार्ज खींचेंगे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बता दूंगा। तो इसकी वजह से ये दो नेगेटिव चार्ज और ये दो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो राइट हैंड साइड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो नेक्स्ट आपको क्या करना है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। सो नाउ वी कैन ड्रॉ अर्थिंग। यहाँ पे नेगेटिव जो था एज इट इज। Now remove the earthing and take the positive glass rod away from the sphere A. Then A sphere is negatively charged. Okay. तो यहाँ पे जो दो नेगेटिव चार्जेस थे वो इक्वली ए स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए विदाउट कांटेक्ट ऑफ पॉजिटिव ग्लास रॉड। हमने ए जो था उसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले जो था वो न्यूट्रल स्फीयर था, बाद में जब ग्लास रॉड उसके नजदीक लाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव डिवाइड होगा। बाद में मैं अर्थिंग करूंगा। अर्थिंग करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अर्थ में से पॉजिटिव के पास आके वो साइड को न्यूट्रल कर देंगे। देन आई विल रिमूव दी अर्थिंग एंड पॉजिटिव ग्लास रॉड फ्रॉम दी ए स्फीयर। सो ए स्फीयर विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। सेम वे यू कैन से दैट पॉजिटिव चार्ज भी हम कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमको प्लास्टिक रॉड लेना है। यहाँ पे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो एक्सेस होगा वो अर्थिंग की वजह से अर्थ में चले जाएगा और बाकी बचेगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो स्फीयर आप पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड जो है चार्जिंग की, उसमें डिफरेंस क्या है वो आपको शायद अभी पता चला होगा कि जो चार्जिंग बाय कांटेक्ट है और कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी इसको बोलते हैं। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो चार्ज था ए,
स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज था, पी न्यूट्रल था, तो दोनों का कांटेक्ट करवाने के बाद चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो गया। या 3 स्फीयर थे तो 1/3 1/3 1/3 सेम अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मतलब जो चार्ज बॉडी था उसका चार्ज कम हो जाता है, चार्ज बॉडी लूजेस इट चार्ज। यहाँ पे कांटेक्ट वाली मेथड है उसमें। whereas in the induction method either this or this, यहाँ पे जो ग्लास रॉड था वो अपना चार्ज लूज नहीं करता है। मैंने सेम यहाँ पे प्लस ड्रॉ किए, 4 है यहाँ पे तो 4 ड्रॉ किए, यहाँ पे 8 है तो 8 ड्रॉ किए, तो यहाँ पे चार्ज लूज नहीं होता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था तो बी भी पॉजिटिवली चार्ज ही हुआ। whereas in इंडक्शन मेथड अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेता हूं तो जो स्फीयर बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज मतलब ऑपोजिट चार्ज का हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड लूंगा तो यहाँ पे जो स्फीयर बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। यहाँ पे कोई भी चार्ज लूज नहीं होता है, जितनी अमाउंट इनिशियल थी बिफोर चार्जिंग उतनी ही आफ्टर चार्जिंग रहती है। देयर इज नो लूज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। सो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस फॉर चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज। So what is charge? Charge is an intrinsic property of the matter or material. जैसे mass प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, सेम वे चार्ज भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसको डिफाइन करना हार्ड है, बट द सिंबल हम चार्ज का क्यू लेंगे, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। द यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम कूलम, कैपिटल सी लिखेंगे। ओके, that is E 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। This means that अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हो तो उसके ऊपर का चार्ज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तो इसका डबल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लोगे तो इसका 3 टाइम होगा। तो ये इंडिपेंडेंट इसलिए लिखा है क्योंकि इससे छोटे भी चार्जेस मिलते हैं, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं मिलते। जो वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रुप में मिलते हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स शायद आपने सुना होगा, क्वार्क्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंटेनिंग क्वार्क्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्क्स जो डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट मतलब छोटे से छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज अभी तक जो इन्वेंट या फाइंड हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो दैट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। सो इफ ऑब्जेक्ट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज लेने का, और प्रोटॉन है तो उतना ही प्लस चार्ज लेने का। तो आइदर प्लस और माइनस, सेम वे 2e minus 2e, 3e minus 3e। तो ऐसे करके हम सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए ne minus ne लेंगे। तो टोटल कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, तो उसको हम
कॉमन फॉर्मूला के तौर पे Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई लिख सकते हैं, क्योंकि n जो है वो इंटीजर नंबर है। इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा या दो प्रोटॉन होंगे, बट डेड प्रोटॉन या 2.7 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा। तो n मींस इंटीजर नंबर, q मींस टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट जो हमको चाहिए फाइंड करना है वो, एंड e मतलब स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। इसको आप बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हो, बेसिक या फंडामेंटल चार्ज। तो ये E की वैल्यू हमको अभी याद रखनी है, दिमाग में फिक्स कर लेनी है, ये बार बार आने वाली है न्यूमेरिकल एमसीक्यू थियरीज में। तो स्मॉल e इंडिकेट्स द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, that is E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So Q is equal to plus or minus NE. That is the equation of quantization of electric charge. Quantization of electric charge. So quantization means some limited amount or some limited values। यहाँ पे हम n की वैल्यू ओनली इंटीजर ही रख सकते हैं, 1.5 या 2.3 ऐसा कुछ नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या लेंगे, सम लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड वैल्यूज। तो इसका स्टेटमेंट, ऑफिशियल इसका स्टेटमेंट अगर चाहिए तो क्या होगा, तो टोटल जो भी चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल और बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज ही होगा। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल of fundamental charge. This statement is known as the quantization of electric charge. तो इसके ऊपर से आप MCQ भी आ सकता है, इसके ऊपर से क्या MCQ बन सकता है। तो सपोज आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है, बॉडी दी है, उसके ऊपर का चार्ज आपको सपोज दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 कूलम। ओके, कोई बॉडी है, मैटर या ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 कूलम है। तो उसमें प्रोटॉन्स के नंबर कितने होंगे, E तो हमको पता ही है, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, so we knew that Q is equal to NE, therefore N is equal to Q by E. तो Q की वैल्यू हमारे पास है 1.6 into 10 raised to minus 18। E की वैल्यू हमको पता है 1.6 into 10 raised to minus 19। तो ये 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज़ टू माइनस 18 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 10 रेज़ टू माइनस 1, जो ऊपर लिखेंगे तो 10 होगा। ओके, सो दिस मीन्स दैट इफ ऑब्जेक्ट और बॉडी हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव में लिख देता हूं बाद में, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। So we can say that if body having this much of negative charge, it contains 10 electrons। तो इसके ऊपर से हमको पता चल जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इतना चार्ज हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो n की वैल्यू हमको 10 मिली, विच इज ए इंटीजर नंबर। सपोज 9.5 मिलती तो इज इट पॉसिबल, नो। अकॉर्डिंग टू
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू अगर इंटीजर होगी तो ही वो पॉसिबल होगी। तो नेगेटिव चार्ज मतलब देयर इज ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब देयर इज ए लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज उतना कम होगा, नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना पॉजिटिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग एंड इजी एग्जांपल। सपोज सिस्टम मतलब सपोज कोई बॉक्स है, उसमें मैं +2 कूलम लेता हूँ, -1 कूलम लेता हूँ एंड +4 कूलम लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना होगा? देन वी कैन राइट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। ये 4 + 2 6, 6 - 1, तो इसका चार्ज जो होगा वो +5 कूलम होगा। तो जो भी टोटल चार्ज हमको कैलकुलेट करना है इन फ्यूचर न्यूमेरिकल या एमसीक्यू जिसमें भी आए, तो वो अलजेब्रिक सम ऑफ दी ऑल दी इलेक्ट्रिक चार्जेस करना है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कैंसिल होता है, बाद में जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे +2 + 4, तो +6 कूलम एंड -1 कूलम, तो 6 - 1 मतलब +5 कूलम ये सिस्टम में टोटल चार्ज है। तो यहाँ पे आज जो हमने पढ़ा वो चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब विदाउट कांटेक्ट। चार्ज उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल चार्ज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो बार बार आने वाली है। दिस इक्वेशन इज आल्सो important equation, q is equal to ±ne, where n is equal to integer number. Then this equation shows the quantization of electric charge. So in our next lecture we'll discuss the Coulomb's law and Coulombian force.